We are taking these classes on Patanjali's Yoga Sutras, and uh, Patanjali's Yoga Sutras are extremely powerful. One of the most powerful literature ever written from India. Out of all the philosophies which have come, yoga is considered to be the most powerful philosophy. And the yoga philosophy, the complete uh, detailing of it in practical terms, step by step, starting from the first step till the last step, has been given by Patanjali in his 196 Yoga Sutras. It is very powerful, very beautiful, and it can take you from being a completely worldly, stubborn man into absolute enlightenment, absolute freedom, absolute moksha. That is what is possible. And he has stated this process in just 196 lines, 196 sutras. That is the beauty of the whole thing. I've been taking these sessions for a few days. Some of you have joined recently. If you have any questions, you may ask, or I will try and give a brief summary of what all has been covered so far so that you can connect with what Patanjali is talking about and how it can uh, impact your life. It can magically, miraculously impact your life, my life, the life of everybody around us. That is the power of this. The the first three sutras of Patanjali give the entire essence of what is yoga. And if we understand these three, then let me tell you the other portion of the book need not be understand. The other portion of the sutras need not be understand. So I will just go through the first three. The first sutra says that the yoga starts now. Ata yoga anushasanam. That means in the now, in the present is yoga. So the question now is, what is yoga? If the yoga is in the now, then where is it? Why can't I see it? Why can't I experience it? Why can't I feel it? Why am not a part of it? So this is a very primary question. And Anushasan can be understood in two ways. Anushasan can mean either a discipline or Anushasan can mean that we are starting it now. The system of yoga is being expounded now, is being explained now. So these are the two meanings. So one meaning can be that yoga is a discipline in the now, in the moment, in the present. It is not in the past. It is not in the future. It is in the living moment, now, right now. So how is it living right now? That is the question. To understand this, let us understand what is yoga. Very, very important. What is yoga? Yoga talks about joining, jog, जोक करना. हम लोग बोलते हैं ना, दो और दो का जोक करो. दो और दो का जोक किया तो चार हुआ. 2 + 2 = 4. तो जोग इज जॉइनिंग. और इसका इंग्लिश वर्ड जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज योक. योक ऑल्सो मीन्स जॉइनिंग. तो योगा जो है, जिसको कि वेस्टर्न वर्ल्ड में योगा बोलते हैं, हम लोग योग बोलते हैं हिंदी में. इट इज जॉइनिंग. किसकी जॉइनिंग की बात हो रही है यहाँ पर? और क्या ये संभव है कि हम जब किसी को किसी से ज्वाइन करें, तो क्या किसी को किसी से अलग नहीं करना पड़ता है ज्वाइन करने के लिए किसी को किसी के साथ? बहुत अहम क्वेश्चन है. अगर मैं अपने जीवन में अपना अटेंशन अपने बच्चे पे लगाता हूं, तो मैं वहां कनेक्ट करता हूं, मैं वहां ज्वाइन करता हूं. लेकिन अगर मैं अपना कनेक्शन, अपना अपना अटेंशन अपने बच्चे पे लगाता हूं, तो डेफिनेटली मैंने कहीं से हटाया अपने अटेंशन को. शायद पहले मेरा अटेंशन मेरे खाने पे था, मेरे मेरे पानी पीने पे था, मेरे गाना सुनने पे था, मेरे कुछ काम पे था, किसी से फ़ोन पे बात करने पे था. वहाँ से अटेंशन शिफ्ट होके अब जॉइन हुआ मेरे बेटे के ऊपर.
तो हम जब कहीं पर भी अपना अटेंशन लगाते हैं, वहाँ अटेंशन अटैच होता है, वहाँ योग होता है। अब ये तो क्या हुआ कि हमने एक जगह से वियोग किया, अटेंशन तोड़ा और दूसरी जगह जोड़ा, तो योग हुआ। लोग कहते हैं कि जब हम ईश्वर पे ध्यान लगाते हैं, उनके साथ एक हो जाते हैं, तो योग हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन तब संसार से वियोग हो जाता है। संसार को आपको छोड़ना पड़ता है, प्रकृति को आपको छोड़ना पड़ता है। तो योग क्या है? योग वननेस है, टुगेदरनेस है, कंप्लीटनेस है, कमिंग टुगेदर है, मिलना है। और जब हम अपने अंदर ये क्षमता पैदा करें कि जिसके साथ हम मिल रहे हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान लगा रहे हैं, जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं, वहां पर हमारा अटेंशन है लेकिन अटैचमेंट नहीं है। और जिससे हम दूर होके आए हैं, उससे हमारा अटैचमेंट अभी भी है। मतलब एक स्टेट ऑफ बैलेंस, अटैच डिटैचमेंट का स्टेट। सबके प्रति हम बैलेंस में सबको साथ लेके चल रहे हैं। तब ये कंप्लीट टुगेदरनेस है, कंप्लीट वननेस है, तब ये कंप्लीट योग है। और हम जब पतंजलि में योग की बात करते हैं, तो हम उस कंप्लीटनेस की बात करते हैं। हम किसी एक पे ध्यान लगाने की बात नहीं करते हैं। एक पे ध्यान लगा के, एक पे अटेंशन दे के, एक पे फ़ोकस करके, एक पे कॉन्संट्रेट करके, हम अपनी कैपेबिलिटी जॉइनिंग की, योग की बढ़ाते हैं। लेकिन वो योग नहीं है अपने आप में, वो सिर्फ़ एक माध्यम है, एक साधन है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, तो वो एबीसी पूरी इंग्लिश नहीं है। वो सिर्फ़ उसकी नींव है। वो सिर्फ़ एक बेसिक अल्फ़ाबेट्स, एक बेसिक टेक्नीक है भाषा को सीखने का। उसी तरीके से ध्यान एक बेसिक टेक्नीक है योग को सीखने का, माइंड को अटैच करने का और डिटैच करने का। लेकिन जब हम सब चीज़ों के साथ अपने मन को कॉन्स्टेंटली अटैच करके रखें, तो क्या होता है? बड़ी एक अजीब घटना घटती है। मन ही गायब हो जाता है। मन कहाँ जाएगा? या तो बेटे पे जाएगा, या तो फ़ोन पे जाएगा, या तो खाने पे जाएगा, या तो काम पे जाएगा। मन इतना डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि सबके साथ वो बैलेंस आउट हो जाता है कि मन ही गायब हो जाता है। और जीवन की क्या सच्चाई है? जीवन की 3 सच्चाइयाँ हैं। एक, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं। दूसरा, जिसको हम मन बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। और तीसरा, जिसको हम मैटर बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। तो जब मन निकल जाता है, क्योंकि सारी लिमिटेशन, सारी कहानियाँ, सारी इंटरप्रिटेशन मैटर की जो है वो मन की है। मन जुड़ता है, मन अलग होता है, मन कहानियाँ बनाता है, सारा खेला मन का है। जब मन ही हम इतना डिवाइड करके सब चीज़ों पे लगा लेते हैं कि मन ही इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाए, इनसिग्निफिकेंट हो जाए, गायब हो जाए, तब आत्मा का डायरेक्ट प्रकृति से मिलन हो जाता है। तब सोल का डायरेक्ट मैटर से मिलन हो जाता है। तब स्पिरिट और मैटर एक हो जाते हैं। माइंड बीच से, मन बीच से, चित्त बीच से गायब हो जाता है। तो योग क्या है? इस मन, इस चित्त, इस माइंड को गायब करना ही योग का मेथड है। योग की मेथोडोलॉजी है, प्राइम मेथड है। तो पतंजलि ने क्या किया है? सेकंड सूत्र में इसको डिफाइन किया है। दूसरे सूत्र में ये कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। आपका योग तब होता है जब आपकी चित्त, चित्त मतलब मन, माइंड, जब आपका चित्त की वृत्तियां, वृत्तियां मतलब फ्लक्चुएशन, बदलाव, चेंज, मॉडिफिकेशन, उथल पुथल, निरोध हो जाए, बंद हो जाए, सो जाए, गायब हो जाए। उसी कंडीशन में, उसी केस में चित्त गायब हो जाता है। चित्त क्या है? चित्त में कॉन्स्टेंटली हम लोग रजिस्टर करते हैं। जो भी हमारी इंद्रियां हमको सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से सिग्नल देती हैं, वो चित्त रजिस्टर करता रहता है। वो चित्त उसको रिकॉग्नाइज करता रहता है। वो चित्त उसको रिकॉर्ड करता रहता है। जब चित्त की ये काबिलियत ही खत्म हो जाए रिकॉर्ड करने की, सेंसिटिव होने की, समझने की, कुछ रिएक्ट करने की, कुछ रिस्पॉन्ड करने की, चित्त शांत हो जाए, चित्त एक पत्थर की तरह देखता रहे बस क्या हो रहा है सामने।
तो वहाँ चित्त गायब हो जाता है। चित्त है लेकिन नहीं है। और क्योंकि चित्त है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि वृत्तियाँ बंद हो गई। हमने उसको चित्त का काम करना बंद कर दिया। चित्त का उथल-पुथल हमने बंद कर दिया। चित्त को हम अपने संयम में ले आए, चित्त को हमने शांत कर दिया, चित्त को हमने सुला दिया, चित्त हमारा स्टिल हो गया। वहाँ पे योग है। वहाँ पे आपकी आत्मा प्रकृति का साक्षात सीधा दर्शन करती है, बिना मन के इंटरप्रिटेशन के, बिना मन के कहानियों के, बिना मन के दर्पण के, बिना मन के कांच के थ्रू देख के। तो वहाँ पर ना बुद्धि, ना अहंकार, ना मन, ये तीनों का रोल जब खत्म हो जाता है, तब आत्मा प्रकृति का सीधा दर्शन करती है। और जब सीधा दर्शन करती है, तब उससे मुक्त हो जाती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर पतंजलि के इस सेकंड सूत्र को, जिसमें कि डिफाइन किया गया है पूरा योग, तो आपको बाकी 194 सूत्रों की ज़रूरत ही नहीं है। इसी में पार है। और ये सूत्र क्या बोलता है? इसको अब हम दूसरे एंगल से देखते हैं। ध्यान से सुनिए और पकड़ने का कोशिश करिए। यहाँ पे एक 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 क्लिक होगा, एक आहा फैक्टर आना चाहिए, और जिसके साथ ये क्लिक, ये आहा फैक्टर आ गया, उसको पूरा योग समझ में आ गया। उसको फिर पतंजलि के सूत्र पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका काम फिर यहीं खत्म हो गया। आप ऐसा समझिए, एक उदाहरण देता हूँ, मेरे को किसी ने समझाया और मुझे समझ में आया क्षण भर में, जो कि मैं कई सालों से साधना से समझ नहीं पाया, किताबें पढ़ के समझ नहीं पाया, वो उस एग्ज़ाम्पल से समझ पाया। तो मैं वही एग्ज़ाम्पल आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, उन स्वामी ने कहा कि आप मानिए कि सागर में आप देख रहे हैं और मछलियाँ कूद रही हैं। आप मछलियों को बस कूदते हुए देखिए, उसका कोई मतलब मत निकालिए। बोले कि ये जो मछलियाँ हैं, ये आपके थॉट्स हैं, ये आपके विचार हैं, जो आपके मन के अंदर कूदते रहते हैं। और ये जो समुद्र है, सागर है, ये आपका मन है, कॉन्शसनेस का, चेतना का। उसके अंदर विचारों को उठते गिरते देखिए बस। उसमें जुड़ मत जाइए, उसकी कहानी मत बनाने लगिए कि वो मछली पीली है, ये काली है, ऐसी होती तो वैसा होता, वैसी होती तो वैसा होता। इसका मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, इसको टान के थोड़ा वैसा कर लेता हूँ, इस पिक्चर को ये चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं, सूरज होता तो अच्छा होता, चाँद भी होता तो और बढ़िया होता, ठंडी हवा चल रही होती तो कितना अच्छा होता। मन को पास्ट में मत लेके जाइए, मन को फ्यूचर में मत लेके जाइए, उसी क्षण, उसी पल वहीं रहिए और उन मछलियों को कूदते हुए देखिए, समुद्र से बाहर, फिर वापस समुद्र के अंदर, समुद्र से बाहर, ऊपर हवा में, फिर वापस समुद्र के अंदर। सिर्फ साक्षी भाव से देखिए। अगर आप अपने मन के इन विचारों को, जो कि मछलियों के रूप में आ रहे हैं और जा रहे हैं, और ये सागर आपका मन है, आपका चित्त है, तो क्योंकि आपको वो, आप पे कोई परिवर्तन नहीं डाल रहा है, वो मछलियाँ, कुछ समय के बाद वो मछलियाँ कूदना बंद कर देंगी। वो मछलियाँ कूदना बंद कर देंगी। इसका मतलब आपके मन की उथल-पुथल अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन मछलियों को देखेंगे, उनकी स्टोरीज़ बनाएँगे, उनके साथ एंगेज करेंगे मेंटली, तो वो मछलियाँ कूदती रहेंगी। 2 की 4 होंगी, 4 की 8 होंगी, 8 की 80 होंगी, ऊँचा कूदेंगी और ऊँचा कूदेंगी, नीचे जाके बैठ जाएँगी, 10 मिनट गुम हो जाएँगी, फिर वापस आएँगी, कब रंग बदलेंगी, अलग-अलग नाटक करेंगी। तो यही मछलियाँ जो हैं, ये हमारे विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं। आप अपने कॉन्शसनेस में, अपने माइंड के अंदर थॉट्स आएँगे, उनको देखिए साक्षी भाव से, सिर्फ़ देखिए।
इसको पकड़ने की जरूरत है, सिर्फ देखना है, साक्षी बन के सिर्फ देखना है। मान लीजिए मैं एक सिनेमा घर में मूवी देख रहा हूं और पिक्चर में डायलॉग चल रहे हैं, तो मेरे को उसके साथ जुड़ना नहीं है, एंगेज नहीं होना है। अगर मैं जुड़ता हूं, एंगेज होता हूं उस मूवी के साथ, तो वृत्तियां पैदा होती है मेरे अंदर। लेकिन अगर मैं एंगेज नहीं होता हूं, मैं एक मट्टी के पुतले की तरह बैठा हूं और देख रहा हूं, साक्षी बन के, तो उसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर मन नहीं है। तभी वो एंगेज नहीं कर रहा है, तभी वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तभी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। माइंड का कोई काम ही नहीं हो रहा है। जहां माइंड का कोई काम नहीं है, वहां योग है। उस समय जब आप साक्षी भाव की स्थिति में हैं, जब आप सिर्फ देख रहे हैं, तब आप दृष्टा हैं, आप देखने वाले हैं। और जब आप दृष्टा हैं, जब आप देखने वाले हैं, जब आप साक्षी हैं, तब आप पुरुष हैं, तब आप वो कॉन्शियसनेस हैं, वो आत्मा है। और वो किसको देख रही है? वो अपने आप को देख रही है। उसके बीच में कोई कहानियां नहीं है, उसके बीच में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, कोई वायु नहीं है, कुछ नहीं है। डायरेक्ट परसेप्शन है, डायरेक्ट देखा जा रहा है। तो पतंजलि ने अपने तीसरे सूत्र में ये कहा कि जब वृत्तियां खत्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, सो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, तब देखने वाला अपने स्वरूप का अपना दर्शन करता है। मतलब हम अपनी आत्मा का दर्शन कर रहे हैं। मतलब ये वो स्थिति है जिसको कि हम बहुत बड़ी स्थिति समझते हैं, समाधि की। समाधि की स्थिति बस साधारण साक्षी की स्थिति है। आप बैठे हैं बिना मन के अपने, तो आप समाधि में हैं। अगर आप बैठे हैं और आपका मन है और चल रहा है, तो आप समाधि में नहीं है। तो समाधि मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बैठे रहना। समाधि मतलब ये कि आप दुनिया में हैं, प्रकृति में हैं, लेकिन आपका मन आपके बस में है। एक ने कहा कि एक स्वामी जी ने कहा, बहुत बहुत जबरदस्त बात है। बोला, मैं आपको बोलूं उठो तो आप उठोगे? मैंने कहा उठेंगे। मैं आपको बोलूं चलो तो आप चलेंगे? मैं कहा चलेंगे। मैं आपको बोलूं रुक जाओ तो आप रुक जाएंगे? बोले रुक जाएंगे। बोले वैसे आप अपने मन को क्यों नहीं बोल सकते कि ऑन हो जाओ और ऑफ हो जाओ? मन को ऑफ कर दीजिए, समाधि लग जाएगी। मन को ऑन कर दीजिए, दुनिया में आ जाएंगे, दुनियादारी में आ जाएंगे। तो मन को ऑफ करना, मन को बोलना अभी 5 मिनट बंद हो जाओ, मतलब वृत्तियों को बंद करना है। और मन को बोलना चलो अभी 10 मिनट चालू हो जाओ, तो मतलब अब 10 मिनट के लिए वृत्तियां चालू हो गई। तो जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, और जो मैं हूं देखने वाला दृष्टा, उसके बीच में वृत्ति है। वृत्ति सो जाएगी तो मेरे को वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट नीट, क्लीन, डायरेक्ट जैसी वो है वैसी दिखेगी। 100% जैसी वो है, ओरिजिनल, वैसी दिखेगी। और अगर मैं उसको देखता रहूंगा, तो वो अपने राज खोलती रहेगी। वो मेरे को अपने बारे में गहराई में और बोलेगी। क्यों? क्योंकि वो वस्तु भी प्रकृति का हिस्सा है। तो तीसरे सूत्र में वो ये बोलते हैं कि जब वृत्तियां बंद हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तब देखने वाला अपने ही स्वरूप का, दृष्टा स्वरूप का दर्शन करता है। उसको बड़े-बड़े शब्दों में डिफाइन किया हुआ है: आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, और आत्मदर्शन। ये बड़ी-बड़ी बातें नहीं हैं। आपको सिर्फ समुद्र के किनारे मछलियों को बैठ के देखना है। वो कूद रही हैं, आप देखिए बस। ये मछलियाँ आपके थॉट्स हैं, ये समुद्र आपके मन की कॉन्शसनेस है, चेतना है, जिसको आप देख रही हैं। और ये अगर आप समझ में आ गई, ये आपने साधना कर ली, इस बात को ध्यान में रखा कि आप जो भी कर रहे हैं दिन में,
उसमें आप मछलियों को देख रहे हैं। आप अपने पत्नी को देख रहे हैं तो भी मछलियों को इमेजिन करिए। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भी मछलियों को इमेजिन करिए। आप अपने बेटे से बात कर रहे हैं धंधे की तो भी मछलियों को इमेजिन करिए। आप देखेंगे आपके जीवन का लेवल पूरा चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे कि जीवन आपके सामने एक फूल की तरह खुलने लगेगा, धीरे-धीरे। और आपको अपने कर्म नज़र आएँगे। आपका कार्मिक अकाउंट आपको साफ-सुथरा, क्लियर कट नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी हैं, वो हमारे कर्मों का रिकॉर्डिंग है हमारे चित्त में, हमारे अंदर, जो प्ले आउट हो रहा है एक मूवी की तरह। वो आपको साफ-साफ दिखाई देगा और जब वो साफ-साफ बिना वृत्तियों के चलता रहेगा, तो नई वृत्तियाँ नहीं बन रही हैं, नए कर्म नहीं बन रहे हैं, पुराने कर्म खत्म हो रहे हैं, आपकी मुक्ति चल रही है। लेकिन जैसे ही आप उसमें एंगेज होते हैं, आप वो पिक्चर देखना चालू करते हैं, आप वो डायलॉग सुनना चालू करते हैं, उसके साथ इमोशनल होना चालू करते हैं, उसमें रिएक्ट करना चालू करते हैं, उसमें रिस्पॉन्ड करना चालू करते हैं, आप वापस वृत्तियों को ले आते हैं बीच में दृष्टा के और वस्तु के। उस स्क्रीन का पर्दे में जान नहीं है, जहाँ पिक्चर चल रही है। वो जो पिक्चर चल रही है उसके ऊपर भी उसमें भी जान नहीं है, वो सिर्फ़ लाइटें चल रही हैं। और जो स्पीकर से आवाज़ आ रहा है उसमें भी कॉन्शसनेस नहीं है, उसमें भी जान नहीं है। वो एक साउंड का डब्बा है जो आवाज़ कर रहा है। जान आप में है, मन आप में है, चित्त आप में है। अब आपको उस स्क्रीन पे मछलियाँ देखनी है कूदते हुए। ठंडे मन से बैठिए और मछलियों को देखिए कूदते हुए। नई वृत्तियाँ मत पैदा करिए। आपका जीवन जो है वो यही मूवी है। आप बेटे से जब बात कर रहे हैं, ये मूवी आपने बनाई है अपने कर्मों के अनुसार और वो मूवी चल रही है आपके सामने 3 डायमेंशनल में, 3D में वो मूवी चल रही है, रियल लाइफ में। उसको चलने दीजिए, उसमें वृत्ति मत पैदा करिए, उसमें विचार मत डालिए, उसमें इमोशन मत डालिए, उसमें मेमोरी मत डालिए, उसमें इमेजिनेशन मत डालिए, उसमें अपना ज्ञान मत डालिए सही या गलत। सिर्फ मछलियों को सागर में कूदने दीजिए और वापस पानी में जाने दीजिए, बस। ये योग है। ये आप कर लेंगे तो आपके पुराने कर्म 1 जन्म के, 2 जन्म के, 10 जन्म के, 100 जन्म के, 1000 जन्म के, 5000 जन्म के, 1 लाख जन्म के धीरे-धीरे, धीरे मिटने लगेंगे, जलने लगेंगे, गायब होने लगेंगे। आपका चित्त साफ होने लगेगा। उसमें जो भी पुराने संस्कार हैं, वो गायब होने लगेंगे। लेकिन अगर आपने वृत्तियाँ पैदा करी, आपने पिक्चर का मज़ा लिया, रोए-धोए, गाए, खुशी आई, कमेंट किया, तो नई वृत्तियाँ बनेंगी, नए संस्कार बनेंगे, नए कार्मिक अकाउंट बनेगा और नई रिकॉर्डिंग होगी। फिर चलेगी वो, पता नहीं कितने जीवन चलेगी इस बार। 1 जीवन जाएगी, 10 जीवन जाएगी, 100 जीवन जाएगी, 1000 जीवन जाएगी। जो पिक्चर का आप आनंद ले रहे हैं, उसका कर्म कब खत्म होगा, कब उसका आप भुगतान करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या करना है आपको? सरल, मछलियों को कूदते हुए देखिए सागर। मछलियाँ क्या हैं? आपके थॉट्स। सागर क्या है? आपका कॉन्शसनेस, आपके मन का कॉन्शसनेस, आपके चित्त का कॉन्शसनेस, साक्षी भाव से इनर्ट होके डिस्पैशनेटली बिना कनेक्ट किए उससे उन मछलियों को देखिए और ये भी जान लीजिए मछलियों को पता चलता है कि आप देख रहे हैं और जब आप एंगेज करेंगे मछलियां और कूदेंगी और जब आप एंगेज नहीं करेंगे इनर्ट रूप से देखेंगे
साक्षी भाव से देखेंगे, मछलियों को समझ में आता है कि ये ऐसे ही बैठा है, हमसे आकर्षित नहीं हो रहा है, जिसका हमारे प्रति कोई राग पैदा नहीं हो रहा है, ये वैरागी है। मछलियां नाचना बंद कर देंगी, मछलियां चुपचाप सो जाएंगी और फिर मछलियों को सोने की आदत पड़ जाएगी और फिर मछलियां परमानेंटली सो जाएंगी। और जिस दिन मछलियां परमानेंटली सो जाएंगी, उस दिन आपकी मोक्ष है, उस दिन आपके सारे कर्मों का अकाउंट खत्म हो गया, क्योंकि अभी नए विचार बनना बंद हो गए। तो इसको प्ले आउट होने दीजिए। ये जो आपके जीवन की मूवी आप साथ में बनाकर धरती पे आए हैं, भारत में है, उसको देख लीजिए, चुपचाप चलने दीजिए उसको। उससे क्रोधित मत होइए, उससे दुखी मत होइए, उससे उत्तेजित मत होइए, उससे नाराज मत होइए, उससे खुश मत होइए, उससे आनंदित मत होइए, उसको लेके बंदर की तरह कूदिए मत। शांति से बैठिए, शांति में, और उस मूवी को चलने दीजिए, उन विचारों को आने दीजिए, उन मछलियों को सागर में कूदने दीजिए और आप उनको शांति से देखते रहिए, गौतम बुद्ध की तरह देखते रहिए, गौतम बुद्ध के पुतले की तरह। तब आप योगी कहलाएंगे। योगी बनने के लिए कोई पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई दुनिया को, संसार को त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी तो योग कर रहा है प्रकृति के साथ। प्रकृति से भाग के कहां जाएगा? वो तो प्रकृति का प्रेमी है, प्रकृति उसका माध्यम है, जिस माध्यम से उसकी मुक्ति होनी है, उसको मोक्ष मिलना है। वो प्रकृति का दीवाना है। प्रकृति यहाँ पे फेमिनाइन है, लेडी है, और पुरुष जो है, आत्मा जो है पुरुष है, मेल है। दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों फ्यूज हैं एक दूसरे के अंदर। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, क्योंकि पूरी की पूरी पतंजलि की योग यही है, पूरा योग शास्त्र यही 3 सूत्र है। पहला सूत्र, अथ योग अनुशासनम, योग अभी है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और पता नहीं कितने गैलेक्सीज हैं और कितने प्लैनेट्स हैं, अनगिनत, अनगिनत। सब बैलेंस में है, सब वननेस में है, सब टोटलिटी में है। ये योग है, ये कंप्लीट परफेक्ट योग है। अब इसका ये मतलब नहीं कि इसमें कुछ पैदा नहीं हो रहा है, कुछ मर नहीं रहा है, कुछ दौड़ नहीं रहा है, कुछ खड़ा नहीं है, कुछ जल नहीं रहा है, कुछ ठंडा नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, कुछ छोटा नहीं है, सब है, पूरी वैरायटी है, लेकिन सब आपस में बैलेंस में है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। ये योग है। तो जब हम आकाश में इन तारों को, सितारों को, गैलेक्सियों को, इस ब्रह्मांड को देखते हैं, तब हमको कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अपने यूनिवर्स को देखते हैं इस दुनिया में, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को, अपने नौकरी को, अपने बिजनेस को, अपने मकान को, अपने धंधे को, अपने फैक्ट्री को, अपने यार दोस्तों को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने देश को, पूरे संसार को, अपने धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को, अपने दुश्मनों को, उस समय हमको योग क्यों नहीं आता है भाई? सब वहाँ हलचल, हम लोग के जीवन में हलचल है, वहाँ हलचल पता नहीं चलती है। आपके जीवन में हलचल से आप विचलित होती हैं, ये आपको तकलीफ है। हलचल से आपको विचलित क्यों होना चाहिए? मुझे एक प्रश्न था जो आपने बताया, जैसे कि नई वृत्ति नहीं बनेंगी, पर हम, चलिए हमने ध्यान में वो तो क्या काम कर्म तो रोज कर रहे हैं हम। क्या तब कर्म से करती हैं आप?
मतलब कोई भी काम सबसे मिल-जुल रहे हैं, घर की सेवा कर रहे हैं, किसी को डाँट रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या हमारा कार्मिक साइकिल तब वो खत्म कैसे होगा? नहीं, मैं आपको उत्तर देता हूँ ना, किसी को डाँटने की आपको ज़रूरत क्या है? किसी से बात करने की आपको ज़रूरत क्या है? अब घर में है तो बात तो करने को मतलब जैसे सब अभी रोज। अभी 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 हम आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं, ठीक है? हमने ये बोला, करीब आधा घंटा बोला, आपने प्रश्न किया, तो ये वृत्ति है। मैंने जो बोला आधा घंटा, वो मछलियाँ सागर में कूद रही थी। लेकिन आपने उन मछलियों से कॉन्टैक्ट किया और आपने पूछा कि, "हे मछलियाँ जो तुम कूद रही हो, तो उसमें तो ऐसा-ऐसा हो रहा है।" आप पकड़ पा रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आप पूरे शांति से मेरा ये नाटक बोल रहा है, लेकिन जो भी मैं बोल रहा था, जो भी मैं नाटक कर रहा था, जो भी मैं मछलियों का आपको ड्रामा दिखा रहा था, जो भी मैं आपको पिक्चर की बातें कर रहा था, आप उस पर्दे में चढ़ गई अंदर और आपने उस पर्दे में रोल चालू कर दिया। ये वृत्ति है बहुत बड़ी और ये वृत्ति से क्या हुआ? संस्कार बन गया। अब ये संस्कार से क्या हुआ? कर्म अकाउंट आपका चेंज हो गया। तो ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, कर्म से आप दूसरे कर्म को खत्म नहीं कर सकती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक कर्म से आप दूसरे कर्म को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर एक कर्म से दूसरे कर्म को खत्म करना संभव होता, तो राम के रावण को मारने के बाद स्टोरी वहीं खत्म हो गई होती। महाभारत में कौरवों के हारने के बाद स्टोरी वहीं खत्म हो गई होती। ये बार-बार का ड्रामा क्यों है अच्छाई और बुराई का? क्योंकि अच्छे कर्मों से भी बुरे कर्म खत्म नहीं होते हैं। दोनों रह जाते हैं, 2 बीज रह जाते हैं। अभी मान लीजिए कि मैंने बुरे कर्म किए हैं और मेरे अंदर बुरे कर्म के 10 बीज हैं और मैं अच्छे कर्म करूँ और मैंने अच्छे कर्म के 100 बीज पैदा किए। तो जब फसल लगेगी मेरी, तो वो जो 10 बीज जो बुरे हैं, वो भी पेड़ बनेंगे, वो भी फल देंगे। लेकिन जब फसल काटी जाएगी, फसल निकाली जाएगी, तो 110 मान लीजिए कि फल लग रहे हैं, 100 अच्छे फल होंगे, 10 खराब फल होंगे, तो लोग बोलेंगे फसल अच्छी हुई है। ओके, ओके, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अंडरस्टूड। हाँ, कर्म एक एक नेगेटिव कर्म कभी भी एक पॉजिटिव कर्म से खत्म नहीं होता है। आपने अगर पेपर पे माइनस लिखा हुआ है, उसके सामने आपने प्लस लिख दिया, उससे माइनस गायब नहीं हो जाता है। बिल्कुल, कैसे गायब होता है? अब सवाल ये उठता है कि कैसे गायब होता है? अगर आपको अपने जीवन का अकाउंट, संस्कारों का कार्मिक अकाउंट ज़ीरो करना हो, तो कैसे होगा? वृत्तियों को सुला के। इसका पूरा एक प्रोसेस है। आप जब वृत्तियों को सुलाना चालू करेंगी, सबसे पहले क्या होगा कि जब आप मछलियों को देख रही हैं, मान के चलिए नॉर्मली जब आप मछलियों को देख रही हैं, आप पूरी तरह मछलियों के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, स्टोरी में आ जाती हैं। या आप पिक्चर देख रही हैं, तो पूरी तरह पिक्चर में इन्वॉल्व हो जाती हैं। या आप जीवन में हैं, तो पूरी तरह जीवन में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे आपने कहा ना डाँट लगाया, बात की, तो पिक्चर में इन्वॉल्व हो गए आप और 3 डायमेंशनल पिक्चर चल रही है, आप भी उसके पात्र बन गए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी पिक्चर चल रही है, आप अपना इन्वॉल्वमेंट मिनिमम कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप वृत्तियों को निरोध करना चालू करेंगे। निरोध मतलब सबड्यू, धीरे-धीरे आप उसको कंट्रोल करना चालू करेंगे। कि अगर मैं दिन में 4 बार रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, तो 3 बार कर लूँ। अगर 10 बार कर रही हूँ, तो 9 बार कर लूँ। तो बिल्कुल, ये आदत बनानी पड़ेगी। हमको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो धीरे-धीरे अपने आप को सुधारते हुए कर्म अकाउंट को खत्म करे। तो ओके, सबसे पहले क्या होता है, कैसे मालूम पड़ता है? जो जो जिसकी बात पतंजलि करता है, जो कि असंप्रज्ञित समाधि में वो बोलता है। तो समाधि 2 तरह की है। समाधि मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। अब आप बताइए सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो सकता है?
सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन वो है जहां माइंड ही नहीं हो। और बिल्कुल अगर आपकी वृत्तियां नहीं है तो माइंड चली गई। वृत्तियां तो माइंड में हो रही है ना। अभी बिल्कुल जब आप मछलियों को देख रही हैं, इंद्रियों के माध्यम से देख रही हैं, जैसे मान लीजिए एक कैमरा देख रही है, कैमरा फोटो ले रही है, कैमरा थोड़ी ना बैठ कर मछलियों के बारे में सोचती है, काली है, पीली है, कूद रही है, बैठी है, अब क्या होगा, इसके बाद क्या, उसके बाद क्या। कैमरा नहीं सोचता है, कैमरा फोटो खींचता है। तो ऐसा नहीं है कि इंद्रियों का प्रयोग नहीं करना है, इंद्रियों का प्रयोग करना है। आंखों का काम हो रहा है, साइट का काम हो रहा है, वो तन मात्रा जो देखने की वो काम कर रही है। इनसाइड नहीं ले जाना है, हाँ, इनसाइड नहीं ले जाना है, उसको डीपली नहीं सोचना है। डीपली नहीं, उस पर माइंड नहीं लगाना है। उसको 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 लेना है अंदर, छवि अंदर लेनी है बस। उस पर माइंड नहीं लगाना है, माइंड उस नहीं पर लगा। स्टोरी नहीं बनानी है, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब देखिए, आप जब बीच में आती है तो मेरा लिंक टूट जाता है। मैं क्या बोल रहा था उसके पहले? वृत्ति अंदर नहीं ले जानी है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि पहले मैं आपको अंतिम समाधि बताता हूँ। अंतिम समाधि में क्या होता है कि मन नहीं होता है, वृत्तियां नहीं होती है, आप सीधा वस्तु को देखते हैं। हम धरती पे हैं तो देखेंगे ना, आंखें हैं देखेंगे, कान है सुनेंगे, नाक है सूंघेंगे, वो सब तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो तो आप देखेंगे जैसे एक एक माइक सुनता है आवाज, वैसे आपके कान सुनेंगे। जैसे एक फोटो कैमरा पिक्चर देखती है, वैसे आप पिक्चर देखेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात है? वैसा वैसा आपकी बॉडी इंडिपेंडेंटली काम करती है, विदाउट स्टोरीज, विदाउट माइंड, ना माइंड का प्रयोग किए। ये फाइनल स्टेट है, ये अंतिम समाधि है। ये पोजीशन में आप आ गए मतलब आपने बुद्धित्व प्राप्त कर लिया। लोग कहानियों में इतने फंसे हुए हैं कि कोई यहां तक पहुंचता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि भैया यही अंतिम स्टेज है और ये सिंपल है, मेरे को मछलियां देखनी है बस, और मछलियां देखने की प्रैक्टिस करनी है, तो जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप कहां पहुंचे हैं? आप कौन से कंसंट्रेशन पे, कौन से समाधि पे, आपका मन कैसे वर्क कर रहा है? सबसे पहले क्या होता है, आता है संप्रज्ञ समाधि। संप्रज्ञता समाधि के 4 स्टेज हैं। पहले स्टेज में आपको एहसास होगा आपके शरीर का, क्योंकि आपका मन का आपके शरीर में है। तो पहले स्टेज में आपको शरीर का एहसास होगा। जब आप मछलियों को देख रही होंगे ना, आपको एहसास होगा कि मेरा शरीर भी है और मैं देख रही हूँ। सेकंड स्टेज में क्या होगा, आपको शरीर का एहसास नहीं होगा, आपको सिर्फ मछलियों का ख्याल आएगा। थर्ड स्टेज में क्या होगा, आपको मछलियों का भी ख्याल नहीं आएगा, आपको शरीर का भी एहसास नहीं होगा, आपको आनंद आएगा। आपको उन मछलियों को कूदते उठते बैठते देख के एक मन में आनंद आएगा। और चौथा क्या होगा, लास्ट स्टेज, आपको सिर्फ ये एहसास होगा कि मैं देख रही हूं। मछलियां भी नहीं दिखेंगी अभी आपको, अभी आपको ये एहसास होगा कि मैं देख रही हूं। ठीक है? अभी इन चारों में क्या कॉमन है? चारों में ये कॉमन है कि इसमें मन का प्रेजेंस है। फाइनर 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 लेवल पे है, लेकिन माइंड इज प्रेजेंट। फर्स्ट स्टेज में माइंड जो प्रेजेंट है वो बॉडी की अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट है। सेकेंड स्टेज में माइंड बॉडी को छोड़ के सिर्फ थॉट के रूप में प्रेजेंट है। थर्ड स्टेज में थॉट भी चला गया, आनंद के रूप में वो मछलियों को देख रही है। फोर्थ स्टेज में आनंद भी चला गया, बॉडी का एहसास चला गया, वो विचार चला गया कि मैं मछलियों को देख रही हूँ, वो आनंद भी चला गया, सिर्फ ये एहसास रह गया कि मैं हूं। लेकिन वो मैंपन अभी भी है, वो माइंड का मैंपन, अहंकार, अस्मिता वो अभी भी है, वो जीवित है। तो ये जो 4 स्टेज हैं, ये स्टेज में जब हम देख रहे हैं, जब जब दृष्टा, जब सीयर, जब वो पुरुष, जब वो आत्मा देख रही है, तब क्या है कि मन प्रेजेंट है। और ये जो मन प्रेजेंट है, ये बीज है। मतलब ये बीज के माध्यम से, मन के माध्यम से हम कंसंट्रेशन को बेटर कर रहे हैं, हम वृत्तियों को घटा रहे हैं। जो मैंने आपको स्टेज बताई थी,
जो कि डायरेक्ट आप देख रहे हैं, कोई वृत्ति नहीं है, आपको अपना भी एहसास नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर निर्बीज समाधि होती है, कोई बीज नहीं है, आप डायरेक्ट वो जो प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, स्ट्रेट, और वो आपसे डायरेक्ट प्रमाण है आपका, आपकी जो इंद्रियां देख रही हैं, जो मतलब निकाल रही हैं वो नहीं, इंद्रियां जो देख रही हैं। हाँ, आप बात समझिए मैं जो बोल रहा हूँ, इंद्रियां जो देख रही हैं, सुन रही हैं, एहसास कर रही हैं, उसकी बात हो रही है। मन उसकी क्या स्टोरी बना रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। और इसमें आपका कोई लॉजिक भी नहीं लग रहा है, आप कोई स्टोरी नहीं बना रहे हैं, कोई इन्फरेंस नहीं कर रहे हैं, ना आप किसी किसी पंडित, किसी ब्राह्मण, किसी ऋषि की बातें सुन के देख रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप खुद, दृष्टा, देखने वाला, आत्मा, सीयर, वो डायरेक्ट उस वस्तु को देख रहा है इंद्रियों के माध्यम से, अपनी साक्षी भाव से। तो वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ समाधि है, इतना सिंपल है। और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप पार है, आप पार है, आपको वापस नहीं आना है। जो ये कर लेते हैं, सिर्फ वृत्तियों को सुला देते हैं, सिर्फ इंद्रियों से देखते हैं, उनको तीर्थंकर बोलते हैं जैन धर्म में। महावीर जैन तीर्थंकर थे। अब आप सोचिए, पिछले 2400 साल में एक ही तीर्थंकर हुआ है, एक ही सज्जन हुए हैं जिन्होंने डायरेक्ट इंद्रियों से देखा है, बाकी हम सब स्टोरी बनाने वाले हैं, अलग अलग लेवल की। अभी ऐसे स्वामी हैं, आपने देखा होगा स्वामियों के नाम में आनंद होता है। तो आनंद क्यों होता है? क्योंकि जीवन में, शरीर में आनंद की स्थिति में रहना एक हाई स्थिति मानी जाती है। और पतंजलि के हिसाब से ये थर्ड स्टेज है। जब आप मछलियों को देख रहे हो और आपको आनंद आ रहा है, तो आप स्वामी बन गए। या अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। सबको समझ में आ रहा है कि मैं, मतलब मेरी लैंग्वेज इजी है, मुश्किल है, कि बहुत फास्ट जा रहा हूं मैं? मेरे को फीडबैक देंगे तो मेरे लिए बेटर रहेगा। सर, Everything is तो clear. ये वृत्तियां कैसे सुलाएं हम लोग, जो अपने हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग एज अ हाउस होल्डर हैं, तो हम लोग कैसे वृत्तियां सुलाएं अपनी? नहीं, वृत्तियां कमानी है। अ, अब जैसे मान लीजिए कि आपके हस्बैंड ने आपसे कुछ कहा, तो उन्होंने मुंह से कुछ कहा, आपके कानों में आया। आपके कानों में क्या आया? आपके कानों में उनके शब्द आए। शब्द आए मतलब शब्दों की आवाज आई। मान लो उन्होंने कहा कि रचना इधर आना, तो आपने रचना इधर आना, ये 3 तरह के साउंड सुने आप। तो आपके पास सिर्फ साउंड आया और कुछ नहीं आया। आपके कानों ने उन साउंड को सुना, क्योंकि हवा से आया, हवा के माध्यम से वो साउंड आया, उन्होंने साउंड निकाला, साउंड जोर से निकाला होगा, आपके कान तक पहुंचा होगा तो आपके कान तक आया। आपका ध्यान होगा उस तरफ तो आपके कानों ने सुना, आवाज सुनी आपकी कानों ने। अब उसके बाद क्या होता है, वो आपका मन का काम हो गया, वहां वृत्ति आ गई। आपने अगर ये सोचा दिन भर बुलाते रहते हैं, वृत्ति है। अगर आपने ये सोचा अरे उठ के जाना पड़ेगा, वृत्ति है। तो वृत्तियों को हम खत्म कर सकते हैं क्या? इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं। वृत्तियों को हम कम कर सकते हैं कि? हाँ, कम कर सकते हैं। तो जैसे ये जो 2 मीनिंग मैंने आपको बोली, ये 2 मीनिंग मत बनाइए। और उन्होंने कहा कि रचना इधर आना, आप चले जाइए। कोई कुछ मत सोचिए। अब ये बोलेंगे, अब ऐसा लेके आओ, अब ये करना पड़ेगा,
करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं तो जरूरी काम कर रही हूँ, 5 मिनट बाद जाऊं, ये सब स्टोरीज है, ये सब वृत्तियां हैं। क्लियर है आपको? बिल्कुल। तो ये चीज हमको यही हम हर लोग करते हैं सर, हम लोग सोचते हैं अरे मैं तो अभी इतना अपना काम कर रही थी, अभी जाना पड़ेगा। नहीं, ये एक्चुअली आप नहीं सोचती हैं, ये आपका मन सोचता है। मन सोच रहे। हाँ, मन की प्रोग्रामिंग है। मन ने क्या किया है ना, इतने सालों में, इतने जीवनों में जमा कर लिया है बहुत कुछ, और वो उसी के अनुसार काम करना चाहता है। तो सर जैसे बोले कि इमीडिएटली फिर आदमी चला जाए, कुछ सोचे नहीं मतलब। हाँ, मतलब आप जो है वो जो साउंड आपको बोल रहा है, डायरेक्ट एक्चुअल कम्युनिकेशन, उसी पे एक्शन लीजिए। अभी मान लीजिए मैंने आपको बोला नंबर 140, ठीक है? आपके मन में आया 140 तो लकी नंबर है, 140 तो मेरे गाड़ी का नंबर है। कोई मतलब नहीं है, 140 मतलब 140, डेटा मतलब डेटा। उन्होंने जो आपको बोला वो डेटा है, आपके कानों में जो आया, आपके सेंस ऑर्गन्स क्या है? डेटा ऑर्गन्स है। और डेटा लीजिए, कंप्यूटर की तरह काम करिए। जितना आप कंप्यूटर की तरह काम करेंगी उतना ही आप भगवान बनेंगे, और जितना ही आप इंसान की तरह काम करेंगी उतना ही आप इंसान बनेंगे, क्योंकि आपको इंसान बनने की आदत पड़ जाएगी। भगवान कुछ नहीं करता है, अपने आप चलता है। कंप्यूटर भी वैसे ही होता है, ऑटोमेटिक चलता है। कंप्यूटर की तरह काम करिए, इंसान की तरह मत करिए। मन मत लगाइए, मन को हटाना है। मन एक स्टेज तक ठीक है, उसके बाद ठीक नहीं है। तो जो सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं, अब उसको छोड़ने की बारी है, तभी नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे, वरना नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे, इसी लेवल पे रह जाएंगे। सर इससे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व, लाइफ तो बहुत सिंपल हो जाएगी अगर हम लोग फॉलो करने लग जाएं। हम लोग मन लगाते हैं, देन ओनली प्रॉब्लम राइजेस कि ऐसे क्यों करूं, व्हाई। वंस द सिस्टम कम्स इनटू व्हाई, एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रैक्ट। आपको मैकेनिकली करते रहना है बस। बस बिकम राइट। अगर आप एक मैकेनिकल मशीन बन जाती हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपका बुद्धि, अहंकार, मन, सबका रोल खत्म। यस सर, सो सिंपल, बहुत या सिंपली आपने बताया सर ये। तो तो आपका जो अंतःकरण है वो पूरा साफ हो जाएगा, और स्ट्रेट आपका डायरेक्ट रिलेशन आत्मा का बाहर वस्तु से हो जाएगा, प्रकृति से हो जाएगा। प्रकृति और से। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, अब आप देखिए बांधने वाला कौन है? मन है। अ, मेरी 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 आत्मा को, मेरे मेरे बुद्धि को वस्तु से, ऑब्जेक्ट से, सेंस ऑब्जेक्ट से कौन बांधता है? मन बांधता है। और कौन दूर करता है? मन दूर करता है। मन दूर करता है। मन में दो क्वालिटी होती है। एक क्वालिटी होती है अट्रैक्शन की, और एक क्वालिटी होती है रिपल्शन की। कोई चीजें मुझे अगर अच्छी लगेंगी तो कुछ चीजें मुझे खराब लगने लगेंगी। तो जो मेरे को अच्छी लगने लगेंगी वो मिलती है तो मेरे को सुख मिलता है, जो मेरे को खराब लगने लगती है वो भी आएगी तो मेरे को दुख मिलता है, तो मैं सुख दुख में अटक जाता हूँ। तो जब मेरा मन का रोल ही मैं खत्म कर देता हूँ, जब मेरे मन का रोल ही मैं खत्म कर देता हूँ, तो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है, रिपल्शन भी खत्म हो जाता है। अब जब अट्रैक्शन और रिपल्शन खत्म हो जाता है, जब आ, आ, ये बुद्धि को, ये पुरुष को, ये आत्मा को इस प्रकृति से, इन वस्तुओं से बांधने वाली और दूर करने वाली ताकत ही खत्म हो जाए, तो क्या होता है? तो फ्रीडम है ना। तो फ्रीडम है। आत्मा प्रकृति से फ्री हो गई है, ना खींच रही है ना दूर जा रही है, ना उसको धकेल रही है ना उसको खींच रही है, मुक्त हो गई है। यही तो मुक्ति है। सर वेरी वेल सेड सर, बहुत सिंपल हो गया है। अगर हम लोग किसी चीज को अपोज नहीं करेंगे तो सारा नाटक खत्म वहीं पे लाइफ में। लाइफ बिकम सो सिंपल। पूरा जो भी आज हम लोग के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिली में, बच्चों से, हस्बैंड से, किसी से भी, तो इफ आई एम फॉलोइंग दैट पर्सन, अगर हम उनका बात सुन रहे हैं तो हमारा भी सुना जाएगा, तो इट्स फिनिश, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड।
So simple. Thank you, sir. Thank you so much. अरे मैडम, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये सर साधना की आप चीज है, आप इसको कैसे एक प्रैक्टिस करें। मशीन की तरह हो सकते हैं, आप तो नहीं, ह्यूमन बीइंग है। प्रिंसिपल इजी है, डुएबल है। आपको मछलियां देखते रहनी है बस, आप बस मछलियां देखिए, यस सर, जहां भी बैठे हो मछलियां देखिए बस। यस सर, ठीक है। यस सर। बहुत सुंदर सर, आज का तो बहुत ही जबरदस्त क्लास था सर। या तो फिर वापस वो 3 सूत्र रिपीट करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। यस सर, नंबर 1 पे जैसे मैंने कहा कि योग अभी शुरू होता है। ये नहीं है कि योग जीवन भर की साधना से होता है, नहीं, योग अभी शुरू होता है। मेरे पति ने जो बोला, मैं जो आपको बोल रहा हूं, यू नो, उसमें भी स्टोरी मत पकाइए। जो मैं बोल रहा हूं वो आवाज सुन के रिकॉर्ड करके रख दीजिए बस। और योग अभी शुरू होता है, और ये डिसिप्लिन है, और इसमें ना पास्ट है ना फ्यूचर में कुछ करना है। आपको जो करना है अभी करना है, अभी करते चलिए बस। सेकंड, योग जो है वो चित चित मतलब मन। मन में क्या होता है? मन जिंदा है तो उसमें वृत्तियां होंगी, ऊपर नीचे होगा मन। मन मर गया है, मुर्दा है, नहीं है, तो उसमें वृत्तियां नहीं होंगी, फ्लक्चुएशन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो ये कहता है कि मन की जो वृत्तियां हैं, मॉडिफिकेशन है, चेंज है, उसको सुला दो भाई। इसका मतलब मन को सुला दो। मन को कैसे सुलाओगे? वृत्तियों को सुला दो। तो आपको यही ध्यान देना है कि जहां पर भी आप हैं, 24 घंटा जब तक जाग रहे हैं, तब तक आपको मछलियां देखनी है इस सागर में। सागर क्या है? आपका मन। और मछलियां क्या है? आपके विचार। विचारों को देखिए, उसको एंगेज मत करिए, उसके साथ जुड़ मत जाइए, उसमें स्टोरी मत बनाइए, स्टोरी मत जोड़िए, उसको चेंज करने की कोशिश मत करिए। थॉट्स को, जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि जो हो रहा है ना, वो आप ही का बनाया हुआ है। अब आप बोलेंगे आपके कैसे बनाया हुआ है? ये आप ही का जीवन, आपकी जो आत्मा की जर्नी है, उसमें जो इतने सारे जीवनों से आप आए हैं, उसमें जो अलग अलग कार्मिक अकाउंट है, उसकी कलेक्शन है अभी चित्त में, रिकॉर्डिंग है संस्कारों के रूप में। कार्मिक अकाउंट आपका है यहाँ पर, तो वो प्ले आउट हो रहा है, वो चल रहा है। लेकिन वो किसी स्क्रीन पे नहीं चल रहा है, वो जीवन में चल रहा है, 3 डायमेंशनल चल रहा है। आप उसके बीच में खड़े हैं, आपके इर्द गिर्द आसे पासे ऊपर नीचे चल रहा है, तो चलने दीजिए उसको। उसमें अपना व्यू पॉइंट, एक्शन पॉइंट मत डालिए। वो तो बना हुआ है, वो चल रहा है, उसको चलने दीजिए। उसको छेड़ने जाएंगे ना, थोड़ा भी अच्छा या बुरा, तो आप नई पिक्चर पैदा कर रहे हैं। जो पिक्चर आपकी 3 घंटे की थी, वो 4 घंटे की हो जाएगी, फिर 6 घंटे की हो जाएगी, वो बढ़ने लगेगी, वो खत्म नहीं होगी। क्योंकि एक कर्म दूसरे कर्म से जाता नहीं है। तो शांति से पिक्चर को चलने दीजिए। नानक ये बोलते थे कि उसका हुक्म है, जो चल रहा है चलने दो, छेड़ो मत, तो चलने दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि हम फिर क्या अच्छे कर्म नहीं करें? करिए। अच्छे कर्म करेंगे तो आपका जीवन में दर्द कम होगा अभी, क्योंकि जो बुरे कर्म पुराने हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसका पावर घटने लगेगा। लेकिन ये नहीं है कि वो गायब हो जाएगा, वो रहेगा रिकॉर्ड पे, लेकिन वो उसका पावर अच्छे कर्मों के मुकाबले ओवरऑल इम्पैक्ट में आपको कम फील होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसको मिटाने का तरीका क्या है? अगर हमको ये कर्मों को मिटाना है परमानेंटली, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका एक ही है कि जितने भी आत्माएं हैं, सबके कार्मिक अकाउंट है। एक कार्मिक अकाउंट किसका नहीं है? परमात्मा का नहीं है, ईश्वर का नहीं है। ईश्वर ना शरीर में पैदा होता है, ना शरीर में मरता है, ना उसको आयनेस होती है, ना उसको अट्रैक्शन होता है, ना उसको रिपल्शन होता है, ना वो जीवन के प्रति लटका रहता है, ना उसका कार्मिक अकाउंट है, ना उसके संस्कार है। वो इन सब से इंडिपेंडेंट है। तो जब हम ईश्वर पे ध्यान लगाते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं,
तब क्या होता है कि हमारे जो कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि हम जीरो अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं बार बार, तो हमारा अकाउंट भी धीरे धीरे जीरो होने लगता है। ओह, जैसे मान लीजिए कि मेरे को टैरो सीखना है, तो मैं धीरे धीरे टैरो पे ध्यान लगाना चालू करूंगा, दिन में 1 घंटा करूंगा, तो साल 2 साल में मैं टैरो का एक्सपर्ट बनने लगूंगा, 10 साल में सुपर एक्सपर्ट बन जाऊंगा। उसी तरीके से अब क्या हो रहा है, मैं टैरो के संस्कार रिकॉर्ड कर रहा हूं अंदर। तो उसी तरीके से अगर मैं ईश्वर पे ध्यान लगाता हूं, जिसका कि संस्कारिक अकाउंट जीरो है, कार्मिक अकाउंट जीरो है, क्लेशों का अकाउंट, योगा में क्लेश मतलब ऑब्स्टिकल्स टू योगा, वो जीरो है, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरे कर्म के जो अकाउंट हैं वो मिटने लगेंगे और वो गायब होने लगेंगे। ये ही एकमात्र तरीका है। कोई भी साधना, कितनी भी तपस्या आपको मुक्ति नहीं दिला सकती है जब तक कि आप ईश्वर के प्रति पराधीन नहीं होते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं करते हैं, तभी जीरो हो सकता है। बाकी तपस्या से आप कम कर सकते हैं, साधना से आप कम कर सकते हैं, ये जो वृत्तियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत, लेकिन वो जीरो नहीं होगी, वो मुक्ति नहीं देगी आपको, फिर लाएगी धरती पे, और कभी ना कभी आपका फिर अकाउंट बढ़ जाएगा, फिर आप अटक जाएंगे, फिर आपको आना पड़ेगा, वो चलता रहेगा साइकिल, हजारों सालों साल तक चलेगा। लेकिन अगर आप ईश्वर पे ध्यान लगाना चालू करते हैं, जो कि जीरो अकाउंट वाला है, जिसका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, जिसका कोई वृत्ति नहीं होती, जिसकी कोई क्लेश नहीं है, जिसके कोई संस्कारिक अकाउंट नहीं है, तो आपके ध्यान लगाते 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 आपका भी मिटने लगेगा, आपका भी जीरो होने लगेगा और आपका जीरो हो जाएगा। जैसे हम लोग मास्टर की सिस्टम में बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब चित्त। आप विजुअलाइजेशन करिए, आप रेपिटेशन करिए, आप आर्ग्यूमेंटेशन करिए, आपका वो रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो उसी तरीके से हम ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ईश्वर की। हम ईश्वर के बारे में बार बार सोचेंगे, काल्पनिक तौर पे सोचेंगे, तो हम में अंदर वो गुण आने लगेंगे, हम ऐसा बनने लगेंगे। इसलिए इस देश में 2 तरीके हैं, एक है निर्गुण, एक है सगुण। सगुण रूप में आप कृष्ण, राम, शिव, इनके ऊपर ध्यान लगा के ईश्वर के रूप में, कि इनमें कोई अकाउंट नहीं है, कार्मिक अकाउंट नहीं है, सांस्कारिक अकाउंट नहीं है, कोई योग के क्लेश नहीं है, आप पार निकल जाएंगे। या तो आप निर्गुण को अगर मानते हैं तो भी आप पार निकल जाएंगे। फिलॉसफी दोनों में सेम है। और पतंजलि ये बोलता है, वो अपने अगले सूत्र में अगले दिन किसी दिन डिटेल में कवर करेंगे, बट मैं सिर्फ टच कर रहा हूं कि ओम एक ऐसा मंत्र है जो कि ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, उसका सिंबल है। वो कहते हैं ओम पे ध्यान लगाओ। तो ओम पे अपने बाद में बात करेंगे, ईश्वर के और भी सूत्रों में बोला गया है, अपने बाद में बात करेंगे उन पे। तो अपने वो पहले 3 सूत्रों पे थे। तो पहला सूत्र था कि अभी योग चालू है, डिसिप्लिन है। दूसरा है कि वृत्तियों को सुलाना ही, चित्त की वृत्तियों को सुलाना ही योग है बस, और बाकी सब एक्सप्लेनेशन है। और तीसरा कि जब वृत्तियां सो जाती हैं तब हम अपना स्वरूप का दर्शन करते हैं। मैं अपने आप को रियलिटी में जैसा मैं हूं वैसा देखता हूं, बिना मन के बीच में आए। क्योंकि अगर मैं अपने आप को देख रहा हूं, शरीर तो बीच में आएगा नहीं ना, मैं तो अंदर देख रहा हूं, और मन को मैंने सुला दिया है, तो और कौन रह गया अंदर? मैं ही रह गया ना। तो मैं को देखेगा डायरेक्ट। तो आत्मा जो है वो देखने वाली है, वो दृष्टा है, वो सीयर है, वो पुरुष है, वो देखने आया है, वो देखेगा। यही मेन योग की फिलॉसफी है। इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी अपने डिटेल में थ्योरी में धीरे धीरे घुसते रहेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे और इन डेप्थ स्टडी करेंगे, बहुत मजा आएगा। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। यस सर, ठीक है, यस सर, डेफिनेटली सर। चलिए, थैंक यू सो मच। सर मैंने किताब मंगाई है,
पर मैं बहुत जब बढ़िया। इसको खोल के देखती हूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही। नहीं, मुझे पता है, और लेकिन ये किताब आप रखिए, जब भी हाँ। आपकी इच्छा हो धीरे-धीरे पढ़िए। आपको माँगता है तो एक और सिंपल किताब है, इससे सिंपल है। इनके गुरुजी हैं वो, लाइट ऑफ पतंजलि योग सूत्रास बाय BKS आयंगर। आएंगे, ओके। हाँ, वो योग के गुरु हैं, अभी नहीं है, शरीर हाँ। में नहीं है। तो उनकी किताब सर मंगाइए, वो काइंडली एक बार रिपीट कंपैरेटिवली कीजिए, ईज़ी है। लाइट ऑफ, लाइट हाँ लाइट ऑन पतंजलि योग सूत्रास। ओके सर, 1 मिनट में टाइप कर रही हूँ, लाइट ऑन पतंजलि, कहाँ पर टाइप कर रही हैं आप? ये चैट बॉक्स पे। अच्छा, चैट बॉक्स तो चला ही जाएगा ना, आप उस पे करिएगा YMI में। ये हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, करेक्ट, लाइट ऑन पतंजलि योग सूत्रास, आएंगे। राइट सर? हाँ, बाय BKS आयंगर। बाय BKS आयंगर। BKS आयंगर। इनका एक्चुअली यौगिक परंपरा है इनके परिवार में, आयंगर परिवार में, और बहुत बड़े-बड़े योगी हुए हैं इनके घरों में, और उन्होंने योग का प्रचार बहुत किया है। मतलब वर्ल्ड वाइड जो योग आज फेमस है, उसमें हाँ। इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। Yes. इन्होंने आसन और प्राणायाम पे बहुत काम किया है। मैं सर ये आपको हमको 5 बात मिनट में बहुत अच्छी लगी आपकी, जो आपने बोला कि जीरो अकाउंट ईश्वर ही है, तो आप, दिस इज ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल फॉर अस कि हाँ, आप सिंपल जब है, गॉड, हाँ वो चीज बहुत प्रैक्टिकल है सिंपल है। देखिए, कि मैं जब पूजा करता हूँ ना, मैं ओम की ध्वनि चला देता हूँ, मंत्र चला देता हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भैया तुम्हारे में तो चारों मिटे हुए हैं, मेरे में मिटा दो, संस्कार जीरो कर दो, मेरे कार्मिक अकाउंट मेरा जीरो कर दो, नया जो बन रहा है, और जो जो फलित हो रहा है उसको भी जीरो कर दो, और जो योग के प्रति क्लेश हैं, जो कि ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको भी जीरो कर दो। रात को नींद में भी मेरी यही प्रार्थना चलती है। मेरे को होश आता है नींद में, देखता हूँ मेरे अंदर ये चल रहा है, तो यही मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया ये मेरे स्लेट में ये 4 लाइनें तू मिटा दे बस। सर कौन कौन सी 4 लाइन आप बोले? एक तो क्लेश, क्लेश, हाँ, क्लेश नहीं होने चाहिए मन में। योग के 4 ऑब्स्टिकल है, 5 ऑब्स्टिकल हैं। आपको मांगता है तो लिख लीजिए। हाँ सर, मैं लिख रही हूँ। हाँ, क्लेश, योग के लिए 5 ऑब्स्टिकल हैं, 5 क्लेश हैं। एक है अविद्या। लिटरेसी, इलिटरेसी, नहीं, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, विद्या का अभाव होना। हम जानते नहीं है हम कौन है, इसलिए हमारी पूरी समस्या है। यस सर। दूसरा है अविद्या, अस्मिता। अस्मिता, अस्मिता मतलब ये आइनेस, अहंकार बोल लीजिए, अहंकार का एक रूप। फिर है राग द्वेष। राग द्वेष, और वो 5वां संस्कृत का वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसका मीनिंग है क्लिंगिंग टू लाइफ, जीवन को पकड़े रखना, कि मुझे मरना नहीं है। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, क्लिंगिंग टू लाइफ। या क्लिंगिंग टू लाइफ। ये 5 क्लेश हैं जो कि हमको रोकते हैं योग के मार्ग में आगे बढ़ने से। तो जो फर्स्ट वाला है अविद्या, इसी कारण से बाकी 4 आते हैं। अगर हम खुद समझ जाएं कि हम कौन है और क्या है, जैसे मैं लास्ट टाइम में एक बार कह रहा था कि हम लोग कॉस्मिक ट्रैवलर्स हैं, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक्चुअली, और इस समय जो भी है हम लोग धरती पे हैं और अपने जीवन की मूवी देख रहे हैं। सर इग्नोरेंस, अहंकार, राग द्वेष एंड क्लिंगिंग टू लाइफ। हाँ, राग अलग है, द्वेष अलग है। ओके, डिफरेंट, राग हाँ, एंड द्वेष। और अहंकार के लिए सही शब्द है अस्मिता। अस्मिता। हाँ, एग्जैक्टली अहंकार नहीं है वो, बट अहंकार से मिलता जुलता है। ठीक है सर। सर मैं इसको पूरा वो करेक्शन करके आई पुट इट इन द ग्रुप। हाँ, ठीक है, वेलकम। हाँ और सर, मैं एक छोटी तो सी, हाँ बोलिए। यस सर, आप बोलिए सर। हाँ, एक दिलचस्प स्टोरी बताता हूँ आपको।
एक बार क्या हुआ कि विष्णु भगवान लेटे हुए थे शेषनाग पे, Yes. तो बहुत जोर से भारी हो गए, बहुत ज्यादा भारी हो गए, शेषनाग संभाल नहीं पा रहे थे उनको। फिर हल्के हो गए, तो शेषनाग पूछे कि क्या हुआ? बोले वो शिव जी नीचे नाच रहे थे, उनका नाच देख के मैं इतना मोहित हो गया कि मेरा पूरा वजन बढ़ गया। तो पतंजलि बोले फिर तो मेरे को भी देखना है कि शिव जी कैसे नाचते हैं और मैं भी ऐसा नाचना चाहता हूँ। बोले क्या होगा, कैसे करोगे? बोले मैं धरती पे जाऊंगा अवतार लेके। तो उन्होंने खोजा शेषनाग ने कि किसके पास जाए, कौन सी माँ के पास। तो एक योगिनी थी, वो चाह रही थी एक लड़का, और वो बहुत समय से चाह रही थी, नहीं मिल रहा था। एक दिन बाहर खड़ी थी सूरज देवता को प्रणाम करके कि मेरे को एक पुत्र दे दो। तो इतने में कहते हैं, कहानी है कि ये उनके हाथों में गिरते हैं और एक छोटे से सांप के रूप में गिरते हैं और एक बच्चे का रूप ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे को अपना पुत्र मान लो। वो बोलते हैं ठीक है। तो वो बच्चा जो था उसका नाम था पतंजलि। पतंजलि इसलिए कि वो उसका पतन वो गिरा ऊपर से, पतन हुआ उसका, ऊपर से नीचे आया और अंजलि में आया उसके। वो आराधना कर रही थी, हाथ जोड़ के पूजा के उसमें थी, तो उसका नाम पड़ा पतंजलि। तो शेषनाग के अवतार हैं पतंजलि। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि पतंजलि ने जो संस्कृत ग्रामर है वो भी पूरी उसकी लिखी हुई है, डिफाइन की हुई है। जो आयुर्वेद है वो भी पतंजलि का पूरा बनाया हुआ है, और जो योग शास्त्र है वो भी पतंजलि का पूरा बनाया हुआ है। और पतंजलि कई सब्जेक्ट्स के मास्टर थे। और आज ये मतलब वो चल रही है, प्रथा चल रही है कि क्लासिकल डांसर्स जब जब अपना नृत्य आरंभ करते हैं तो पहले पतंजलि को नमस्कार करके, आराधना करके फिर चालू करते हैं। पतंजलि बहुत बढ़िया डांसर थे, बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत बढ़िया केमिस्ट थे, उनकी फिजिक्स की जानकारी बहुत तगड़ी थी, मतलब अनबिलीवेबल आदमी थे वो। तो ये उनकी कहानी है। इसलिए उनको उनको जब भी आप देखेंगे ना, जो भी किताबें खरीदेंगे, आप देखेंगे उनका फोटो जो है वो ऊपर में शेषनाग का सर्प वाला है, फिर अब इंसान का है, फिर वापस जो जो शरीर का नीचे का हिस्सा है वो सांप का है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कुंडलिनी जो है वो भी शक्ति जो है वो भी सर्प के साथ जुड़ी हुई है। और आप कई कई मंदिरों में देवी देवताओं को देखेंगे कि उनके सिर के ऊपर में कई सिरों वाले सर्प होते हैं, और जितने ज्यादा सिर होंगे उतना ही माना जाता है कि उस देवी देवता की कुंडलिनी उतनी जागृत है। तो शेषनाग के 1000 सिर हैं। अब आप सोचिए कि आप जैन मंदिरों में जाएंगे, बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, पारसनाथ जी के देखेंगे, महावीर के देखेंगे, और भी देखेंगे, तो 13, 15, 17, 19 सिर के सर्प रहते हैं उन मूर्तियों के ऊपर। तो शेषनाग खुद 1000 सिर वाले थे। और अब हम लोग जब आगे आगे पढ़ेंगे ना, जब हम लोग सिद्धियों पे आएंगे, विभूतियों पे आएंगे, दंग रह जाएंगे आप लोग कि क्या क्या है ये देश और क्या यहाँ लिखा गया, क्या यहाँ हुआ। बहुत बहुत ही अद्भुत कहानी है ये सब। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, हाँ। जैसे कि ये अभी हम लोग 1 नवंबर से हम लोग थोड़ा सा पूजा का ऑफ ले रहे हैं. वी वोंट बी हाँ। हैविंग क्लासेस. So 1 November से till the pujas and then we continue again. Sir, हाँ will ठीक it be है, fine for you? यस यस एब्सोल्युटली, कोई दिक्कत नहीं है। Thank you so much, sir. Thank you. वेलकम, Today class was amazing, sir. Amazing. थैंक यू अगर सो आज मच। मिस कर थैंक यू सर। जाते. प्रैक्टिस Thank you प्रैक्टिस so करिए, देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके घरों में चमत्कारी तौर पे बदलाव हो जाएगा। आप एहसास नहीं कर पाएंगे क्या होगा, कल्पना के बाहर हो जाएगा। लेकिन उस आशा से मत करिए कि आपको लाभ मिलेगा, आप, क्योंकि वो भी फिर वापस मन को डालना हो जाएगा। मन को डालना. मैकेनिकल मशीन्स बन जाइए, शांति से मैकेनिकल मशीन बने रहिए। हैबिट ठीक है, बनाना होगा सर. हाँ Just बनाइए make ना, it फिर बनाइए, फिर देखिए वो ईश्वर कैसे खड़ा है। वो आपको फील होगा कि वो शेषनाग खड़ा है आपके साथ, आपको Yes. फील होगा साक्षात विष्णु आपके साथ खड़े हैं। सर वो मेरे को फील होता है कि गॉड इज ऑलवेज लाइक
मतलब साथ ही में है वो, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत लगता बढ़िया। है हमेशा। तो आपके अंदर वो प्योरिटी आ गई होगी, इसलिए वो फील होता है। जिनमें प्योरिटी आती है उनमें फील होने लगता है, वो आ जाते हैं एक्चुअली। आपको फील होगा एनर्जी, पावर, करंट, हाँ, थॉट, हर नॉलेज, सर में सर लगता वो है फील कि होता है। गाइडेंस हो रहा है, हाँ, दैट्स अ फील गुड साइन, प्रेजेंस फील हो रहा है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, ओके? क्योंकि क्या है ना, ये ऐसी सीढ़ी है जो ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। तो अगर आप एक जगह खड़ी रहेंगी तो आपको नीचे ले आएगा, Yes. और आप चलती रहेंगी तो ऊपर लेता जाएगा। तो प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस। वो तो कहता है एक सूत्र में कि लगे रहिए बस, कांस्टेंट अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग पीरियड्स। या थैंक यू ठीक है, सो Yes. मच सर, एंड वेलकम। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू Yeah, सर। thank you so much. आप Happy लोग, Diwali to आपने all of तो you. God bless you. Yeah, thank you. आपने Yes. तो हम लोग सबको इतना ज्यादा खजाना दे रहे हैं सर कि मन भर रहा है, अरे खुश रहिए। भर रहा है। खुश ये भी रहिए। एक स्टोरी नहीं क्रिएट हो जाए पर मन भर रहा है। Good. Very nice, sir. थैंक यू सर। Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Yeah.